لوگ جو دنیا کی ایک مخلوق ہے جو کہ بنائی ہوئی ہے, جو کہ اللہ نے دیا ہوا ہے ایک دنیا میں لوگوں کو کہ بھئی مرد عورتیں اور لوگ جو ہیں ان سب کو اکٹھے ایک رائٹس ملنے چاہیے. تو یہ جسٹس کی موومنٹ ہے فیمنزم. تو میرے نزدیک فیمنزم جو ہے بہت براڈلی, میں اس کو جب ایک براڈ طریقے سے نظریے سے دیکھتی ہوں تو اٹ از اے جسٹس لونگ موومنٹ. ٹو می فیمنزم ایکولز جسٹس. کہتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ قرآنک ایک یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن, اکارڈنگ ٹو اسلامک جورسپروڈنس, اس کے مطابق ہم اپنی جو بیٹیاں ہیں یا مائیں ہیں یا جو بھی عورتیں ہیں گھر کی, ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ مردوں سے کم ملتا ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھی کیوں ہے اس طرح. اکثر ہمارے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں, جو زیادہ پڑھے لکھے طبقے کے لوگ نہیں ہیں, وہ تو لڑکی کو اس کی وجہ سے تنگ بھی کرتے ہیں, اس کو تانے تشنے دیتے ہیں کہ تم تو کافی جہیز لے کے ہی نہیں آئی. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چینا تانی کر لیتے ہیں, وہ جو کچھ گھر میں لے کے آتی ہے وہ اس کو خود رکھ لیتے ہیں اور لڑکی کو اکثر جو ہے مار مور کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. مرد اور عورت میں کیوں ہم فرق لانا چاہتے ہیں؟ اسی کا نام فیمنزم ہے. یہ فرق جو ہے یہ جب آپ ایک کو نیچے رکھیں اور دوسرے کو ترجیح دیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ جسٹس کی بات اور عدلیت کی بات نہیں ہے. عدل از دا کانسیپٹ جس کے اوپر ہمارا ریلیجن بیسڈ ہے. تو جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدل ہی نہیں ہو رہا ہے اور آپ ایک آئیڈیالوجی, چاہے وہ ریلیجس ہے یا جو بھی ہے, اس کا آپ استعمال کرتے ہیں ٹو مینٹین ایک سوسائٹی جو کہ اتنی ان بیلنسڈ ہے, تو یہ تو میرے نزدیک کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہت مسلمان بات ہے. اور میرے نزدیک having lived so long in the West, میں نے تو یہ بہت دیکھا اور آزمایا ہے کہ جب تک کہ آپ کے سیکولر انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے سوسائٹی میں, آپ ہر انسان جو اس معاشرے میں رہتا ہے اس کی آپ اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے, آپ اس کو عدل نہیں دے سکتے. کیونکہ جو ایک ریلیجن ہے وہ آپ کا ایک پرسنل چیز ہوتی ہے بھائی, جو آپ کا اور آپ کے خدا کے درمیان رشتہ ہے وہ آپ کا ایک پرسنل رشتہ ہے. Khatin Hazrat, welcome to Reality Bites, the show where we offer you a slice of the real. آج کا موضوع سخن ہے فیمنزم, اور اس کے اندر ایک نئی اصطلاح گویا اسلامک یا مسلم فیمنزم. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فوزیہ افضل خان, جو کہ امریکہ کی مونٹ کلیئر اسٹیٹ یونیورسٹی میں ادبیات اور کلچرل اسٹڈیز کی پروفیسر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور امریکہ بھر کی یونیورسٹیز میں پچھلے دنوں میں اور آج کل پرو پیلسٹائن ایکٹیوزم میں مصروف ہیں. ڈاکٹر فوزیہ افضل خان, thank you very much for joining us today. Thank you for having me, Dr. Samir. Thank you. پروفیسر فوزیہ افضل خان, آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ فیمنزم آخر ہے کیا؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے اور اس کا ایک مختصر میں کوشش کروں گی جواب دینے کا. وہ یہ ہے کہ بڑی ایک بیسک لیول پہ تو اس کو ہم جس کو تحریک نسواں کہہ لیں ایک, اور اس میں ویمنز رائٹس موومنٹ ایک گلوبل سطح پہ, اس کو ہم فیمنزم کا نام دے سکتے ہیں, جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی عورتوں کے کیا حقوق ہیں مختلف معاشروں میں, اور جہاں پہ نہیں ہیں, جہاں کے اکثریت دنیا میں نہیں ہیں, ایکول رائٹس تو نہیں ہوتے ہیں عورتوں کے, کیونکہ دنیا ہی ایک پیٹریارکی ہے. ہم ایک پیٹریارکل ورلڈ میں رہتے ہیں جس میں کہ مردوں کو یعنی کہ ایک زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کے رائٹس زیادہ مد نظر رکھے جاتے ہیں. تو پھر عورتوں کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اگر وہ بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اپنے معاشروں میں, اپنے گھروں میں, اپنی سوسائٹیز میں, کلچرز میں, تو پالیٹکس وغیرہ میں, تو ان کے لیے پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں. تو یہ جو سوچ ہے اس کو ہم فیمنزم کہہ سکتے ہیں. ایک تو تھیوریٹکلی یو تھنک کہ بھئی اس کی تھیوری کیا ہونی چاہیے, فیمنزم کا کیا مطلب ہے, اور اس کے ہر معاشرے کے مطابق شاید کچھ فرق بھی ہوتے ہیں اس کے مطلب, کیونکہ ایک ہی لاٹھی سے ہم ہر ایک مشکل خیال کو اور ایک کمپلیکیٹڈ موومنٹ کو نہیں ہانک سکتے. تو اس کے کیا مختلف اس کے جو ہیں the ways in which it manifests itself وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور کیا ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں
इसलिए इस फॉर द पर्पस कि औरतें जो हैं मर्दों के शाना बशाना खड़ी हों अपने माशरों में और सिटीजन्स बने जो कि इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें इन अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। तो ये एक ब्रॉड सेंस में फेमिनिज्म है, लेकिन चूंकि इसका जो मौकफ एक जस्टिस है ना लाना, क्योंकि अगर आधी दुनिया जो कि औरतें हैं उसमें अगर वो आधे लोग जो हैं उनके राइट्स नहीं उनको मिल रहे, उनके खिलाफ बुरी चीजें हो रही हैं, वायलेंस हो रही है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी के नहीं राइट्स हैं, एजुकेशन के नहीं राइट्स हैं, उनको घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, उनको मुआशरे में नहीं इक्वल राइट्स मिल रहे, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, मतलब आधी दुनिया को आपने पीछे धकेला हुआ है। तो उनको राइट्स देने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, उनके हकूक को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूवमेंट है वो एक जस्टिस पसंद मूवमेंट ही होगी ना। ये जस्टिस का है, ये नहीं है कि एक को ऊंचा करें दूसरे को नीचा करें। इसमें आप एक बराबर शाना बशाना मर्द औरतें और आजकल जिनको हम कहते हैं ट्रांस लोग वगैरह जो कि शायद एक जिन्स से नहीं वाबस्ता, तो इन सब लोग जो दुनिया की एक मखलूक है जो कि बनाई हुई है, जो कि अल्लाह ने दिया हुआ है एक दुनिया में लोगों को कि भाई मर्द औरतें और लोग जो हैं इन सबको इकट्ठे एक राइट्स मिलने चाहिए। तो ये जस्टिस की मूवमेंट है फेमिनिज्म। तो मेरे नजदीक फेमिनिज्म जो है बहुत ब्रॉडली, मैं उसको जब एक ब्रॉड तरीके से नजरिए से देखती हूँ तो इट इज अ जस्टिस लविंग मूवमेंट। टू मी फेमिनिज्म इक्वल्स जस्टिस। अच्छा, ये अदल पसंदी का एक तरीका है। ये बताइए डॉक्टर फौजिया, आपका ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, गो आप पढ़ाती अमेरिका में हैं। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा हक है जो खवातीन को नहीं मिला हुआ? यानी जायदाद में उनका हिस्सा उनको मिलता है, चाहे भाई से आधा मिले लेकिन मिलता है, तो लिखा गया आपने है। कह दिया ना, भाई से आधा क्यों मिलता है, ये तो बात सोचने की है। और हम इसको इस तरीके से उसको कहते हैं कि इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये क्योंकि ये कुरानिक एक यानी कि अकॉर्डिंग टू द कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उसके मुताबिक हम अपनी जो बेटियां हैं या माएँ हैं या जो भी औरतें हैं घर की, उनको उनका हिस्सा जो है वो मर्दों से कम मिलता है। फिर सवाल उठता है कि भी क्यों है इस तरह। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब के इस्लाम नाजिल हुआ था एक 7th सेंचुरी अरेबिया में, तो उस वक्त औरतों के कुछ हालात बहुत मुख्तलिफ थे। अब जो आप 21st सेंचुरी में आ गए हैं, दुनिया अब वो नहीं रही है। या तो आप कहें कि हम उसी दुनिया में रह रहे हैं, उसी जमाने में और उसी तरह रह रहे हैं और उसी तरीके से यानी कि चीजें आगे चल रही हैं, ये तो निरा झूठ होगा ना और सच की मुखालफत है। तो जबकि एक दुनिया जो है वो इतनी चेंज हो गई है, आपकी जरूरियात चेंज हो गई हैं, औरतें जो हैं वो अपने राइट्स डिमांड कर रही हैं, वो अब अक्सर घरों में काम करती हैं, अपने घरों को चलाती हैं। कई दफा मर्द नहीं भी मौजूद होते या उनकी शादियां नहीं होती हैं, या जो भी वजूहात इतनी हो गई हैं मॉडर्न जिंदगी में, दैट ऑल्सो कंपेल औरतों को, मतलब उनकी जरूरियत बन गई है, एक जरूरत बन गई है कि उनको काम घर के बाहर करना पड़ता है वगैरह वगैरह। शौक अलहदा बात है, लेकिन जरूरत एक अलहदा बात है। तो जबकि वो इतनी चीजें कर रही हैं जो कि पहले वो नहीं करती थी, और तो हकूक उनके आप वही रखें जो कि एक 7th सेंचुरी अरेबिया में होते थे, ये तो गलत बात है ना। तो मेरे डॉक्टर फौजिया, अगर हम 21st सेंचुरी में भी आ जाएं तो आज के पाकिस्तान में कौन से हकूक हैं जो खवातीन को हासिल नहीं है? मेरा ख्याल है कि काफ़ी ऐसे हकूक हैं जो उनको नहीं हासिल है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही आपकी पॉडकास्ट में अर्ज किया था, दुनिया एक इटसेल्फ एक पेट्रियार्की है और पाकिस्तान एक बिल्कुल पेट्रियार्कल मुल्क है, जिसमें कि आपकी औरतें जो हैं, अगर आप सिर्फ इंडेक्स ले लें एजुकेशन का, एजुकेशन के में ही अगर आप स्टडी करें स्टेटिस्टिक, तो औरतों को बहुत
कम यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलती है एजुकेशन की, क्योंकि उसको तो इतना ज़रूरी ही नहीं समझा जाता कि भी लड़की को एजुकेट करके हमने क्या कर लेना है। तो औरतें आगे एजुकेशन ही हासिल नहीं कर सकती, ये तो पहली बात है। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो उनको यही नहीं पता चल सकता कि उनके हकूक हो क्या सकते हैं, वो क्या डिमांड करेंगी जब वो जाहिल रहेंगी। और एक जाहिल इंसान को कंट्रोल करना, उसके हकूक उससे छीन लेना, अगर आप ये काम करना चाहते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो एक तो ये बात है, ये तो मतलब स्टैटिस्टिकली आप देख लेना कि औरत जो है पाकिस्तान में, जितने मर्दों को एजुकेशन हासिल है उसके आधो-आध औरतों को है। फिर आ गया आपके हदूद ऑर्डिनेंस जो है, जो कि 1979 के बाद जब ये ज़ियाउल हक ने एक जब ओहदा संभाला था प्रेसिडेंसी का हमारे मुल्क में, तो उन्होंने कोट अनकोट इस्लामिक निज़ाम लाने के उस नाम पे उन्होंने ये हदूद ऑर्डिनेंस जो पास की थी, वो तो उससे तो औरतों का बेड़ा ही गर्क हो गया था हर तरीके से। और वो अभी तक हदूद ऑर्डिनेंस इज ऑन द बुक्स। मतलब एक उन्होंने प्रोटेक्शन, विमेन्स प्रोटेक्शन बिल आई थिंक 206 या 208 2008 में पास किया था, जो कि निहायत ही अदमुआ किस्म का बिल था, जिसका कोई खास असर भी नहीं हुआ और यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई है। तो औरतें जो हैं अभी तक, अगर आप यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं इतने होते हैं जिसमें औरत को ब्लेम किया जाता है कि भाई इसी ने कुछ किया होगा जो ये मार खा रही है अपने मियाँ से। कहाँ है जस्टिस औरत के लिए? रेप केसेस अभी तक बहुत ही खौफनाक हैं। अगर आप नहीं प्रूव कर सकते रेप, तो जो आपके लिए तो फिर बहुत ही बुरा है ना। वो कैसे प्रूव करेंगे आप, जबकि आपको कहा जाता है कि भाई आप एक औरत जो है टू प्रूव द एलिगेशन ऑफ रेप वो 4 मर्दों को उधर उठा के ले आए, वो भी एक गुड स्टैंडिंग में जो सोसाइटी में हो, टू प्रूव कि ये रेप हुआ है। ये चीजें पहले भी थी, अब ज्यादा, अब ये यानी कि उसके बाद ये, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये चीजें कोई रिमूव हुई हैं। फिर प्रॉपर्टी का आप देखें ना, जो हाल है कि औरतों को क्यों आखिर जब हर चीज वो हर काम कर रही है उनको आधो आध का क्यों वो मिले। और जो मर्द हैं अक्सर जो हैं घरों में, वो बिल्कुल उनके राइट से भी, जो उनका राइट है वो भी उनसे छीना जाता है, क्योंकि औरतों के पास एक कुव्वते बाजू नहीं होती। और वो जस्टिस सीख करने के लिए अगर वो कोर्ट्स में जाती हैं तो उनकी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में तौहीन होती है, उनको पागल कहा जाता है, उनको बदमाश कहा जाता है, उनको अंदर जेलों में भर देते हैं भाई। और लोग कहते हैं कि जी पागल हो गई ये इसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दें, उनकी अच्छा औलादें डॉक्टर खुद फौजिया, उनको डाल दें। कता कलामी होगी, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में जो आपने उठाया कि क्यों आदी दी जाती है, अक्सर ये दलील पेश की जाती है कि खवातीन को डावरी या जहेज की शक्ल में भी बहुत कुछ मिलता है जब वो अपने घरों से रुखसत होती हैं। अक्सर पेरेंट्स उनको प्रॉपर्टी देते हैं या एसेट्स उनके नाम कर दिए जाते हैं, लिहाजा ये चीज कहीं ना कहीं तो मुआशरे में बैलेंस आउट हो रही है ना। देखें, वो भी कहने की बातें हैं कि ये माशरे में बैलेंस आउट हो रही हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो एक क्लास का मामला आ जाता है ना, कि जहां पे अगर तो एक औरत एक बड़े अच्छे अमीर घराने से वाबस्ता है तो हो सकता है उसको कुछ ना कुछ मतलब मिल जाए। लेकिन जिस औरत का शायद वो उस किस्म की क्लास के साथ वो वाबस्ता नहीं होगी, तो जो छोटा एक पॉट होगा उसमें से तो उसको कुछ भी हासिल हसूल क्या होगा, क्या उसको डाउरी दी जाएगी। और जब डाउरी भी दी जाती, जो कि एक बड़ा ही पेट्रियार्कल कस्टम है, अक्सर हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे तबके के लोग नहीं है, वो तो लड़की को उसकी वजह से तंग भी करते हैं, उसको ताने तिशने देते हैं कि तुम तो काफी जहेज लेके ही नहीं आई। और अक्सर हम देखते हैं कि वो चीना तानी कर लेते हैं, वो जो कुछ घर में लेके आती है वो उसको खुद रख लेते हैं, और लड़की को अक्सर जो है मार मूर के घर से बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत होता है, आपके शहरों में होता है, आपके गांव में होता है। तो ये तो फैक्ट्स है ना। तो इसमें ये कहना कि भी चूंकि उसको ये एक डाउरी मिल जाती है या कुछ और तरीके से माँ बाप दे देते हैं, ये उसके लिए काफी नहीं होता है। ये इक्वल आप स्प्लिट करें ना, मर्द और औरत में क्यों हम फर्क लाना चाहते हैं? इसी का नाम फेमिनिज्म है। ये फर्क जो है ये
जब आप एक को नीचे रखें और दूसरे को तरजीह दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये जस्टिस की बात और अदलियत की बात नहीं है। चलिए हम अगले मौजू पर, इसी मौजू में अगले सवाल पर चलते हैं कि फेमिनिज्म या निसाइयत या ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक्टिविज़्म करना, क्या ये एक मग़रबी तसव्वुर नहीं है? और क्या हम इसे जनूबी एशियाई या मशरिक़ वस्ता के मुआशरों पर मुसल्लत नहीं कर रहे मग़रिब से इंस्पायर होके? बिल्कुल भी नहीं। निहायत ही गलत सवाल है ये आपका, क्योंकि इसका कोई यानी कि बेसिस ही है नहीं फैक्ट में। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जो जिनको हम जनूबी एशिया या जनूबी एक ममालिक ग्लोबल साउथ का कहते हैं, उनमें तो अगर आप देखें औरतों के हकूक पे जो यानी कि मूवमेंट्स हैं और जो सोच है वो बहुत पुरानी है, बल्कि वेस्टर्न फेमिनिज्म से बहुत पहले यहाँ यानी कि जो लेट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में इंग्लैंड में और फिर अमेरिका में बाद में जो ये मूवमेंट शुरू हुई थी औरतों के हकूक के ऊपर, उससे बहुत पहले मसलन इंडिया में हो चुकी थी। रुकैया सखावत हुसैन जो थी वो मिडल ऑफ द 1800s में बंगाली खातून, वो एक वाहिद नाम है, उन जैसी बहुत थी जो कि पढ़े लिखे तबकों से निकल के उन्होंने ये सोच लिया था, वो लिख रही थी। उनकी एक मशहूर स्टोरी है सुल्ताना ज़हरम, जो कि मतलब अगर आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी दूर अंदेश उनकी थिंकिंग थी, किस तरह वो औरतों के और मर्दों के हकूक और एक दुनिया, एक अच्छी अदल पे बेस दुनिया का वो ख्याल क्या देख रही थी। एक वो फैंटेसी है लेकिन निहायत जबरदस्त, और ये चीजें बहुत पहले से इन मुल्कों में शुरू हो चुकी थी। क्योंकि जहां भी यानी कि एक ऑपरेशन होती है किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के खिलाफ, उसको नीचे दबाया जाता है। ये कहना कि वहां लोग सोए रहते हैं और कहते हैं हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, हम नीचे ही दबे रहेंगे, हमें आप जो मर्जी अन्याय करें हमारे साथ, जो मर्जी हमारे ऊपर आप ऑपरेशन लाएं, हम एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह कहीं नहीं होता है दुनिया में। लोग अगर आज खड़े हुए हैं, आपने फलस्तीन की बात की है, ये आज ही नहीं खड़े हुए, ये जब से उनके खिलाफ एक मुहिम चली थी इनजस्टिस की, तब से खड़े हुए अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो औरतें भी दुनिया के हर कोने में लड़ती आई हैं और अपने मुआशरे के मुताबिक लड़ती आई हैं। ये